Students, today we are going to discuss about the seed, and we all know that seed is nothing but it is a fertilized ovule, and it is also made up of three parts. If we draw the diagram and with the help of diagram we try to understand it, this outermost part, that means you have seen in the gram seed, चने में सबने देखा है बेटा, this is the brown color of covering, at this is outermost covering, no doubt, and it is known as seed coat. Whereas when you split the seed, there are two leaf like structures जो आप खाते हो basically, that are cotyledons, and in between there is a embryonal axis. So there are three things: the seed coat, the cotyledons, and the embryonal axis. So these three things are found in a seed. Now come to the types of seed. How many types of seed do you know? So you have heard about the two types of seed maybe, and if you have not heard, now I am going to tell you that seeds are of two types. One are called albuminous seed and another is called non-albuminous seed or X-albuminous seeds. And what is the difference between two is that in albuminous seed a part of endosperm remains in it. That means during the development of embryo it will not going to consume. You have studied about the endosperm beta, and you all know that what is the endosperm means. Endosperm is a tissue. It is a nutritive tissue which provides the nutrition to the developing embryos. So that means कि जब development हो रहा है, at that time two conditions are there. आइदर एम्ब्रियो पूरा यूज़ कर लेगा एंडोस्पर्म को, एंड दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एम्ब्रियो थोड़ा सा छोड़ देगा, है ना, लेफ्ट ओवर छोड़ देगा कि भाई पूरा मेरे से नहीं खाया गया तो उसने छोड़ दिया, लाइक दैट। तो जैसे आपने कोई फूड खाया और आपने प्लेट में छोड़ दिया तो वो बच गया ना, तो उसको बोलोगे एल्ब्यूमिनस सीड। दैट मीन्स एंडोस्पर्म लेफ्ट, it will not going to consume during the embryo development, whereas in the albuminous seed आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने सारा जितना प्लेट में आपको मिला था फूड आपने सारा फिनिश कर दिया। दैट मीन्स नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, तो वो सारा का सारा फिनिश कर देता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, कुछ भी नहीं बचाता, कुछ भी नहीं छोड़ता। तो दैट सीड आर नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एन एग्जाम्पल इज pea or groundnuts. And in albuminous seed the examples are like castor, barley, maize, all these things. And if you have castor seed in your house, आप उसको वाटर में सोक करो एंड देन स्प्लिट इट ओपन, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ एंडोस्पर्म। बिल्कुल पेपरी थिन स्ट्रक्चर वाइट कलर का आपको मिलेगा, दैट इज द एंडोस्पर्म। Another thing is that is perisperm, a new term you have studied about. The what is perisperm? You have studied about the nucleus, students. In last lecture I told you about the nucleus, ki what is the nucleus. So in some seeds what happens is that this nucleus is also present all together his life their lives. तो ये persistent nucleus जो है यही कहलाता है पेरिस्पर्म। तो रेजिडुअल मीन्स बचा हुआ, रेजिडुअल persistent nucleus is known as the perisperm। अगर ये सीड के अंदर रह जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली ये वाइवा में या एग्जाम्स में आ सकता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई होप यू जस्ट लर्न दिस थिंग बाई kind of a definition. Residual persistent nucleus is a perisperm. It is very easy, you can easily understand it. Now another thing which I want to give you in the brief summary so that you will never get confused ki what converts into which part of the fruit or part of the seed or whatever. So I have written here in the form of a small chart that ovules are converted into seeds. ये आपको याद रखना है by heart, यानी कि भूल जाएं बार बार। तो ovules after fertilization there are certain change। तो जो चेंजेस आते हैं वो किस में क्या बदल जाता है, कौन क्या बन जाता है, वो मैंने आपको बताया कि ovules are converted into seeds, ovary is always converted into fruit, and integuments which you have studied they are converted into seed coats. माइक्रोपाइल, व्हाट इज माइक्रोपाइल? सपोज दिस इज द मेज, सीड ऑफ मेज, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको पोर दिखता है। आप चने को ध्यान से देखना घर पे भिगाने के बाद, पानी में सोक करने के बाद, तो देयर इज अ स्मॉल पोर दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। एंड माइक्रोपाइल करता क्या है, इट अलाउज एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। इसके अंदर से पानी और सब कुछ आ जा लेता है, बिकॉज वेन एवर यू सोक द सीड, तो पानी कहाँ से एंटर कर रहा है, पानी यहीं से एंटर कर रहा होता है। एंड वॉल ऑफ ओवरी, इट इज़ नोन एज फ्रूट वॉल ना, क्योंकि ओवरी के वॉल कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट वॉल में, बिकॉज ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो वॉल ऑफ ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल, एंड फ्रूट वॉल इज ऑल्सो नोन एज द पेरिकार्प। तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज इनटू द पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प, बिकॉज pericarp is the residual persistent nucleus known as perisperm, where is carp, pericarp is the wall of the fruit, that is called pericarp. Now there are certain conditions which are required for the germination of seed, but before going into it कि germination क्या होता है, I just want to tell you something
दैट व्हाट इज़ डोरमेंसी, क्योंकि जर्मिनेशन से पहले डोरमेंसी एक चीज़ आती है कि वो भी हमें जाननी जरूरी है, important है हमारे लिए कि what is dormancy. So students, you have various time you have observed this thing that the seeds like gram and pulses, there are lots of seeds are present which we are used as a form of grain. तो आपने देखा होगा ये स्टोर रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक. वी स्टोर इट फॉर अवर कमर्शियल पर्पस, बेचने के लिए, सेल करने के लिए, और अपने खाने के पर्पस के लिए भी हम स्टोर करके रखते हैं अपने पास. स्टोर हाउसेज में रखे होते हैं ये, गोडाउंस में रखे होते हैं ये. तो आपको ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जो ये इतने टाइम तक ये सीड्स पड़े रहते हैं विदाउट जर्मिनेशन, क्योंकि अगर इसको अभी सॉइल में आप डाल दो दे गेट स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, बट व्हेन एवर यू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ सीड्स तो ये जर्मिनेट नहीं होते. आपके घर में भी दालें वगैरह रखी हैं, दे आर नॉट गेटिंग टू जर्मिनेट तो नहीं हो रही हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट? द रीज़न ऑफ इट इज दैट यू जस्ट ड्राइड इट ऑफ, है ना, यू रिड्यूस द कंटेंट ऑफ वाटर, because before storing these seeds in the form of before storing these seed in the form of grains, you have to reduce their water content by the 10 to 15% by the moisture. ये आपको हटाना पड़ेगा इसके अंदर से. तो आपने मॉइस्चर को, इसको कैसे करते हैं आप? ड्राई करते हो इनको और इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है. जब इनका मॉइस्चर फिनिश हो जाता है देन यू कैन स्टोर इट इन द गोडाउंस एंड फॉर द योर पर्पज़, अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए आप कर सकते हो. तो ये आप इनको यूज़ करते हो. तो इसलिए ये दिस इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वेन एवर यू रिड्यूस द वाटर कंटेंट, है ना, जब आप ड्राई करते हो हार्वेस्टिंग के बाद सीड्स को, इन्हीं सब चीज़ों को, दैट मीन्स दाल और ग्राम वगैरह हो गया, तो आपको पता है कि जब आपने इसको सुखा दिया, ड्राई कर दिया, वाटर कंटेंट हार्डली 14% रह जाता है. तो व्हाट हैपेंस इट्स दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन. अब वो कोई काम नहीं करता क्योंकि एंजाइम्स वगैरह सब ड्राई हो गए, तो वो एक्टिविटी नहीं करेगा, रेस्पायर नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा. तो इट विल नॉट गोइंग टू जर्मिनेट, क्योंकि जब कुछ करेगा तो वो जर्मिनेट करेगा ना. जब कोई एक्टिविटी उसके अंदर होंगी, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी, तो वो जर्मिनेट करेगा. और वो सब एंजाइमेटिक रिएक्शंस ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. आपको पता है एवरीथिंग यू रिक्वायर वाटर फॉर इट. तो वाटर है ही नहीं, आपने ड्राई कर दिया, इतना कम सा वाटर है, तो उसके एंजाइम्स वगैरह डिजॉल्व ही नहीं होंगे, तो यहाँ वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं उसकी पूरी बॉडी में. तो बेचारा वो चुपचाप से डोरमेंसी कंडीशन में पड़ा रहता है. दैट मीन्स इट इज़ इनएक्टिव कंडीशन ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो बेचारा कुछ नहीं करता, चुपचाप सोता रहता है डोरमेंसी कंडीशन में. सपोज इफ़ यू वांट टू ग्रो देम इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉप, तो आप क्या करते हो? इसको ले जाते हैं, आप सॉइल में डाल देते हो. दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड ओनली सॉइल एंड मॉइस्चर, बिकॉज यू गिव लिटिल बिट वाटर ऑल्सो, स्प्रिंकल सम वाटर, एंड ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर दे ऑलरेडी गेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, क्योंकि द क्रॉप्स आर ऑफ वेरियस सीजन्स, है ना, कोई गर्मी की होती हैं, कुछ सर्दी की होती हैं. तो दे यू ऑटोमेटिकली ग्रो दैट क्रॉप इन दैट सीजन ओनली. सपोज सर्दी में या गर्मी में, तो टेम्परेचर दे ऑलरेडी गेट द टेम्परेचर. तो आपको टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन के लिए यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इट, है ना. सिर्फ आप सॉयल दे दो और उनको थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन. एंड आफ्टर द जर्मिनेशन आपको पता है व्हाट हैपन्स. आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट निकलेगा, देन आफ्टर प्लांट क्या होगा, उस पर फ्रूट आएंगे. तो नाउ कम टू द फ्रूट. तो ओव्यूल्स मेच्योर इनटू द सीड एंड द ओवरी मेच्योर्स इनटू द फ्रूट. और जब ये फ्रूट में डेवलप हो जाते हैं, ओवरी वॉल भी आपको पता है डेवलप हो जाएगी पेरिकार्प में, जिसको मैंने आपको बताया कि फ्रूट वॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू ओवरी वॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट वॉल, एंड दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्प. एंड यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज इन द पेरिस्पर्म एंड द पेरिकार्प. तो अब जो फ्रूट्स हैं दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फ्रूट्स आपने पढ़े हैं इन द प्रीवियस क्लास. In the 11th class you have studied about the types of fruits. In short, there are two types of fruit. One is fleshy and another is the dry. What do you meaning by fleshy and dry? Fleshy means जिसमें आप खाने के लिए पल्प आपको मिलता है. For example, mango, you get the pulp from there. Orange, banana, all these things are known as fleshy fruit. And dry fruits means जिसमें थोड़ा सा moisture कम है, पल्प कम है, that means groundnut, mustard, these are called as ड्राई फ्रूट्स. एंड अब ड्राई फ्रूट्स वो मत समझ लेना, वो जो हम आमंड वगैरह खाते हैं वो नहीं ड्राई फ्रूट्स. एंड नेक्स्ट इज दैट जो फ्रूट्स हैं दे आर ऑल्सो डिवाइड इंटू टू कैटेगरीज, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट, है ना. अब आपको लगेगा ये ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट क्या हो गए, तो 11th में आपने ये भी पढ़ा हुआ है. True fruit means the fruits which develop from the ovary directly, and when they develop from the ovary other floral parts fall off, वो ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं. And there are some species also where the fruits develop not from the ovary but the other parts of the plant. For example, not plant, other parts of the flower, that is like you can say thalamus. Thalamus is a part of flower which contributes in the formation of the fruits, certain fruits, not all the fruits.
because like there are certain fruits which are false fruit come into this category, like apple, strawberry, cashew nut. These are the fruits which develop from the अदर देन ओवरी, लाइक थैलमस, है ना, ओवरी से नहीं डेवलप होंगे वो, किसी और भी पार्ट से डेवलप हो जाएंगे, तो दे आर डेवलप फ्रॉम द थैलमस. द डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. आई हैव क्लिक द पिक्चर ऑफ इट. दिस इज द डायग्राम and it is very important and easy also because so many times it comes into your एग्ज़ाम्स एंड आपसे वो तमाम चीज़ें पूछते हैं. कई बार लेबलिंग हटा देते हैं, कई बार कुछ और. तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द वेरी शॉर्ट. There are two, they are divided into two parts, like this is the one part and this is the another part. They have shown some seeds, structure of seeds are there. This is a typical bean structure, है ना. बीन का स्ट्रक्चर कोई भी बीन हो सकता है, लोबिया बीन हो सकता है, या फिर सेम का जो बीन हो सकता है, कोई भी बीन हो सकता है, राजमा बीन हो सकता है. तो दे टू आर द कोटिलिडन एंड द माइक्रोपाइलेंट. वेन एवर यू ऑब्जर्व इट वेरी, यू कैन से, क्या कहेंगे इसको, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे विद फुल कॉन्सेंट्रेशन, यू विल फाइंड द माइक्रोपाइल, है ना. देन अनदर इज़ द कैस्टर. जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ यू हैव कैस्टर सीड इन योर हाउस, सोक इट इन टू द वाटर एंड स्प्लिट इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्सिप, एंड इन साइड इट यू विल फाइंड, दिस इज जो ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ अ वाइट कलर स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्म. तो ये कंज्यूम नहीं हुआ है, बचा हुआ वाला एंडोस्पर्म है. तो वो जो मैंने अभी आपको टाइप्स ऑफ सीड्स बताए थे कि जिनके अंदर कंज्यूम नहीं होता और एक जिनके अंदर कंज्यूम हो जाता है. तो जिनके अंदर कंज्यूम नहीं होता है, दैट मीन्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो ये एल्ब्यूमिनस सीड का टाइप हो गया. नेक्स्ट इज़ द, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड ऑफ, आप कैसे, अनियन. ये अनियन का जो है वो सीड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है. इट इज़ क्वाइट टिपिकल, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ऑल्सो. दिस इज़ द कॉटिलिडन and seed coat outermost, of course, endosperm is given here, hypocotyle, root axis, root tip, everything is given here. And this is the structure of maize. You recognize this very well because you have studied into 11th standard also. So coleoptile, plumule, radicle, coleorhiza, scutellum, the very important thing, scutellum you have studied tomorrow, and the endoderm. तो ये endosperm, sorry, तो ये वाला हिस्सा endosperm पूरा दिया हुआ है. तो these are the things, or you can say part. Now in the section below there are the structure of fruits. तो false fruit, basically they have given the false fruit. This is the apple, आप recognize कर गए होगे. तो आप ये, तो this is the longitudinal section and this is the vertical, sorry, this is the transfer section. तो ये आपको thalamus जो हम खाते होते हैं, thalamus and seed दिखा हुआ है. और दिस इज़ द स्ट्रॉबेरी, एवरीबडी रिकोगनाइज इट. तो थैलेमस इज ऑल्सो, दिस इज थैलेमस. एंड एकीन इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट. जो एकीन लिखा हुआ टाइप ऑफ फ्रूट है. देयर आर लॉट्स ऑफ types of fruit, तो which is not in your syllabus, but here because they have given, so I am telling you that the akin is the type of fruit. So this is all about this diagram. And now we come to the again we continue with our notes. And next thing which I am going to tell you, which is very interesting, there is certain fruits which are known as the parthenocarpic fruit. And what is the meaning of parthenocarpic fruit? That there are some species in the plant where fruit developed without fertilization, है ना. कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही वो फ्रूट डेवलप हो जाता है. एंड ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. एंड व्हाट इज़ मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज़ दैट दे आर सीडलेस. उसमें बीज होते ही नहीं है, विदाउट सीड होते हैं. एंड दिस फिनोमिना इज अकर इन नेचर ऑल्सो, बट यू कैन ऑल्सो इंड्यूस दैम, है ना. नेचर में तो ये होता है अपने आप, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं. बट horticulturists and the farmers also induce this thing, that means parthenocarpic fruit, by the application of certain phytohormones. And one of such hormone is auxins. तो ऑक्सीजन स्प्रे कर देते हैं और वो फ्रूट्स जो हैं वो पार्थेनोकार्पिक में डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं. दैट मीन्स देयर विल बी नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड व्हाट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज दैट because they are seedless, and you know that fruits are used for the consumption of human beings, and we all are intended to take the or you can say consume the fruits where seeds are not there. Suppose you imagine for about the about the watermelon. ठीक है, watermelon has lots of seed in it, and whenever you start eating it you think that हे भगवान इसमें seeds नहीं होते तो it will be more comfortable for you, है ना. तो उसमें सीड्स ना हो, पपाया में सीड्स ना हो. एंड नाउ डेज यू आर आई थिंक नोटिस दैट द फ्रूट्स विच कम्स इन टू द मार्केट लाइक पपाया एंड द वाटरमेलन, दे हैव वेरी लेस सीड.
बहुत कम हो गए हैं उसके अंदर सीड। क्यों? क्योंकि दे आर ग्रोन दीज फ्रूट्स इन द पार्थेनोकार्पिक फॉर्म। तो पार्थेनोकार्पिक फॉर्म होने से ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, इट इंक्रीजेस, बढ़ जाती है, बिकॉज वी डू नॉट नीड सीड। अननेसेसरी वो मुंह में आते हैं तो आपको पसंद नहीं होता खाना ना। आपसे कोई भी पूछेगा कि आप सीड वाले लोगे या विदाउट सीड, तो ऑब्वियसली वी टेल दैट हाँ विदाउट सीड, क्योंकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी उसको खाने के लिए। तो पार्थेनोकार्पी जो है इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द हॉर्टिकल्चर्स, बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस सर्टेन काइंड्स ऑफ फ्रूट्स विच आर वेरी मच इन द यूज़ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो वो उनको आसानी रहती है इन चीज़ों को करने के लिए, तो वो इसलिए उसकी हेल्प लेते हैं तमाम फाइटो हार्मोन्स की, सो दैट दे स्प्रे इन देयर प्लांट्स एंड वो इजीली उनको मिल जाते हैं ऐसे फ्रूट्स। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट if we somebody someone asks to you that how long do seed remain alive for the germination, है ना, कितने समय तक के लिए आपका बीज रह सकता है, तो that period is known as the viability, है ना। we have studied into the topic of I think pollen grain, that we studied about this term viability. And here also you just come across to the term viability, and viability means this is the time period up to when seed has the capacity to germinate, and or you can say alive, for what period, how much period seed remain alive. So this period also varies in species to species, because there are lots of species we remain alive for few months, few species which alive for several years also. And two more most unique example is given in your syllabus. One is the seed which is oldest seed, मतलब जो भी known seed है, that is oldest known seed. It is मतलब आप अगर इसके बात करोगे तो आपको बहुत ही सरप्राइज होगा, बिकॉज इट टेक्स 10,000 ईयर्स ऑफ डोमेंसी एंड आफ्टर देन इट स्टार्टेड जर्मिनेटिंग। तो मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 10,000 साल तक ये पड़ा रहेगा, उसके बाद ही जर्मिनेट करेगा। एंड द नेम इज़ ल्यूपाइन. Lupine is a common name, and Lupinus arcticus is the botanical name, and it found from the Arctic tundra. So Arctic tundra में पाया जाने वाला ये जो lupine seed है, that means Lupinus arcticus है, 10,000 years of dormancy के बाद ये germinate करता है. And another one is which is 2000 years old seed, viable है of course, and the name of the plant is date palm, and the botanical name is Phoenix dactylifera. And where it found at the King Herod's palace near the Dead Sea, and 2000 years तक ये पड़ा रहेगा, उसके बाद ये जर्मिनेट कर सकता है। तो दैट मीन्स सच एन वंडरफुल कैपेसिटी इन दिस these two types of seeds. So this is all for today. We will continue the lecture in the next